classroom. So guys, today we are going to study about the chapter from the Kumar Bharati 10th standard book, chapter number 2.3, Connecting Dots. It's written by Steve Jobs. Who was the Steve Jobs? Steve Jobs was the co-founder, chief executive and chairman of Apple Computers. आपको पता है एप्पल का मोबाइल आता है, एप्पल का लैपटॉप आता है, कंप्यूटर्स जो आते हैं, तो वो ये कंपनी के कौन रह चुके हैं? ही वॉज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड को फाउंडर. सो गाइज, he was a very well known and famous personality. He was not a writer, he was not an author, he was a businessman. He was an American business magnate, industrial designer and media proprietor. तो ये जो लेसन में उन्होंने बताया है, ये उनके लाइफ के आधार पे है, वो उनके जीवन के आधारित पर है. हाउ दे बिकेम अ सक्सेसफुल. सो लेट्स बिगिन विद द लेसन. कनेक्टिंग द डॉट्स. Connecting the dots means what? Connecting the ideas. Whatever ideas came in his mind, he connected all that ideas and became an famous businessman. Steve Jobs was an American entrepreneur, business magnate, inventor and industrial designer. He was the chairman, chief executive and co-founder of an Apple Incorporated. He is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolution of the 1970s and 1980s. तो pioneers का मतलब क्या है? Founders. He was widely reorganized as one of the pioneers of the microcomputer revolution in 1970s and 1980s के दरमियान जो microcomputers का invention हुआ, revolution हुआ, उसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार निभाया है. Today I want to tell you 3 stories from my life. That's it. तो वो क्या बोल रहे हैं? मुझे आज आपको मेरे लाइफ में के सिर्फ 3 stories बताने हैं. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in or another 18 months before I really quit. तो क्या हो गया? उन्होंने अपना जो एजुकेशन चालू था उनका रीड कॉलेज में से, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया. तो 18 मंथ्स के बाद में उन्होंने टोटली ड्रॉप कर दिया. लुकिंग बैक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड. तो लेकिन वो तो इस बात से गम नहीं है. ही इज हैप्पी. ही इज टेलिंग दैट कि उनके लाइफ में का जो सबसे बेस्ट डिसीजन उन्होंने लिया है, तो ये वाला लिया है कि कॉलेज ड्रॉप इन करना. So what is the meaning of dropout? Means discontinued. He discontinued the college and it was the most important part of his life. He is telling us like this. I could stop taking the required classes that didn't interest me and began dropping in one of the ones that looked interesting. तो उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, so he quit that one. So he left it. And जिसमें उनको इंटरेस्ट था उसमें उन्होंने ज्वाइन किया. I didn't have a dorm room. Dorm room means dormitory, means बड़ा सा रूम उनके पास में नहीं था. So I slept on the floor in friend's room. मतलब उनके पास में sufficient shelter नहीं था. So he was staying with his friend's room. और वो भी वो फ्लोर पे सोते थे. I returned Coke bottles for the fast and deposits to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. तो क्या हो रहा है यहाँ पे वो? तो 5 सेंट मीन्स कितना होता है? डॉलर का बहुत कम. मीन्स जैसा भी इंडियन करेंसी में रुपीज है, रुपीज से थोड़ा कम क्या है? पैसा है. तो फिर डॉलर ये उनकी सबसे ज्यादा है, तो सेंट्स मतलब पैसे के बराबर हुआ. तो 5 पैसे. इन शॉर्ट, इन आवर लैंग्वेज वी कैन डिस्क्राइब इट लाइक 5 पैसे पाने के लिए वो जो कोक की एम्प्टी बॉटल्स होते थे वो उसको दोबारा देने के लिए जाते थे. और एक दिन अच्छा खाना खाने के लिए वो हरे कृष्णा टेम्पल को जाते थे. वो उनके घर से 7 माइल्स दूर था. आई लव्ड इट and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out of the priceless later on. तो उनको वहाँ पे खाना खाना पसंद था. हफ्ते में एक बार उनको अच्छा अनाज मिलता था, इसलिए वो वहाँ पे जाते थे. और उनको क्यूरियोसिटी भी थी.
कि वहाँ पे मतलब क्या होता है, ये जानने की भी क्यूरियोसिटी थी। और इंट्यूशन का मतलब क्या है, द फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट मेक्स यू बिलीव और नो दैट विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन, ही कांट एक्सप्लेन व्हाई ही इज गोइंग ओवर देयर. So Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country because I had to take a calligraphy class. I learned about serif and sans serif typefaces, about what makes great typography great. तो उन्होंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस सीखे. जब भी अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंप्यूटर पे अलग अलग फॉन्ट साइज यूज़ करते हैं और अलग अलग मतलब टाइप फेसेस यूज़ करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. उन्होंने कैलीग्राफी सीखी और सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस उन्होंने सीखे. और उसके बाद में क्या हुआ, 10 years later when we were designing the first मैकिंटोश कंप्यूटर, जो मैकिंटोश कंप्यूटर अभी जो मैक के नाम से बहुत पॉपुलर है, तो मैकिंटोश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी एंड वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू दी मैक. तो ये सब फीचर्स उन्होंने मैक में डिज़ाइन किए. इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप इन on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or for that matter even proportionally spaced fonts. तो वो क्या बोले, अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मुझे तो मैक कंप्यूटर को इतने सारे मल्टीपल टाइप के टाइपफेसेस नहीं मिलते, ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता. तो he is thankful that he left the college, that he dropped out the college. He is not blaming himself. And since Windows just copied Mac, it's likely no personal computer would have them. और कैसे Windows ने भी Mac को कॉपी किया, तो it is just like that. कोई भी पर्सनल कंप्यूटर में टाइप फेसेस हो ही नहीं सकते थे अगर उन्होंने उनका कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया होता. तो of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very clear looking backwards 10 years later. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. तो क्या इन्होंने यहाँ तक क्या बताया कि उन्होंने कॉलेज लेफ्ट आउट किया, तो उनको कैलीग्राफी में इंटरेस्ट था, कैलीग्राफी सीखी और टाइपफेसेस सीखे. तो वो उन्होंने वो एप्लीकेशन किया मैक कंप्यूटर्स जब भी उन्होंने बनाया, तो उसमें उन्होंने ये एप्लीकेशंस डाले. तो फिर उसका फ़ायदा क्या हो गया, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में भी फॉन्ट साइज टाइपफेसेस मल्टीपल टाइपफेसेस आ गए एंड टुडे वी आर यूजिंग इट. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. आप dots को मीन्स your ideas को आगे देख के कनेक्ट नहीं कर सकते. Only you can connect it by looking backwards. मतलब हो के बीत के जाने के बाद में अपने को ध्यान में आता है ना, दिस मेरा ये जो डिसीजन था it was right. He is telling that one. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something. Your gut, destiny, कर्म, whatever. तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रस्ट करना है, भरोसा रखना है अपने गट पे, अपने डेस्टिनी पे. वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड बिलीव ऑन आवर डेस्टिनी. और कर्म, अपने जो काम है, अपने जो क्रिया है, अपने जो कर्म है, उस पर हम लोगों को बिलीव करना चाहिए. दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस इन माई लाइफ. और ये जो अप्रोच है उनका, ये कभी भी उनको गिरने के लिए नहीं दिया और ये उन्होंने पूरे उनके लाइफ भर में फॉलो किया है. माई सेकेंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस. माई सेकेंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस. आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ was Steve Wozniak and I started Apple when I was 20. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in the garage into $2 billion company, and then I got fired. It was devastating. So you can guess this moment. कैसा फील हुआ होगा उनको कि उनका जो सेकंड स्टोरी है ये प्यार और लॉस उसके बारे में है. तो वॉज एंड आई, उनका जो पार्टनर था उनका नाम क्या है, स्टीव वॉजनिक. और उन्होंने मिलकर एप्पल कंपनी स्टार्ट की व्हेन ही वाज 20 years old. और वो गैरेज में से उन्होंने बनाए थे कंप्यूटर्स एंड विद इन 10 years इट बिकेम द कंपनी ऑफ ओवर $2 billion कंपनी बन गई उनकी.
तो इतना उनको अच्छा उनका ग्रो होने के बाद में उनको फायर्ड किया गया, मीन्स ही लॉस्ट द जॉब, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब. इट वॉज डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग का मतलब क्या है? कॉजिंग सीवियर शॉक, डिस्ट्रेस और ग्रीफ. तो जस्ट इमेजिन हाउ वन शुड फील लाइक दिस कि इफ जो कुछ भी सक्सेस हुआ है उनके वजह से हुआ है एंड एट लास्ट ही इज फायर्ड फ्रॉम द जॉब. ही इज फायर्ड मीन्स कैसे उनके ऊपर बीती होगी. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did, and so I decided to start over. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. तो अभी क्या हो गया? अभी तो उनको सक्सेस मिल गया था, लेकिन वापस से वो दूसरे पल में वापस बिगिनर हो गए. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. But he described this as the most creative periods of his life. He is not depressed. He didn't give up. He described this period as the most creative period of his life. So he was very positive. He was having very positive approach towards his life. ये तो बहुत बड़ी बात लेनी जैसी है स्टीव जॉब्स की. During the next 5 years, I started a company next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought next. I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lauren and have a wonderful family together. He married to a woman named Lauren, और उन्होंने अभी क्या किया? दूसरी कंपनी उन्होंने स्टार्ट की पिक्सर नाम का. पिक्सर ये फेमस है एनिमेशन के लिए वगैरह, तो उन्होंने वो स्टार्ट की. Sometimes life hits you in the head with a brick. और वापस क्या हो गया? एप्पल वालों ने उनको वापस रीजॉइन कर दिया. फिर उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं? समथिंग लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ द ब्रिक. मीन्स इसका मतलब क्या है? हिट्स यू इन द हेड विथ द ब्रिक मीन्स इट समटाइम लाइफ गिव्स यू अ ग्रेट शॉक. डोंट लूज फेथ. अपना फेथ मत लूज करो, अपना जो भरोसा है उसको मत ब्रेक करो, मत खो. द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू. इफ यू हैवंट फाउंड इट yet keep looking, don't settle. तो वो क्या बोल रहे हैं? तो सबसे the only way to do great work is to love what you do. आप जो करते हैं उससे आपको, जो काम आप करते हैं उससे आपको प्यार करना है. और अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट सेटल डाउन. तो आप ऐसे ही मत बैठो, आप ढूंढो कि आपको किस काम में इंटरेस्ट है. My third story is about death. अब इनकी लास्ट थर्ड स्टोरी है डेथ के बारे में. सेकेंड स्टोरी किसके बारे में थी? लव एंड लॉस के बारे में. और फर्स्ट स्टोरी थी कनेक्टिंग डॉट्स के बारे में. और सेकेंड स्टोरी है डेथ के बारे में. About a year ago, I was diagnosed with cancer. 1 साल पहले उनको कैंसर डायग्नोज हुआ. My doctor advised me to go home and get my affair in order, which is doctor's code for prepare to die. तो डॉक्टर ने क्या कहा था? घर जाइए और आपकी जो कुछ भी कामकाज बाकी रहा है उसको आप कर दीजिए. मीन्स इन डॉक्टर लैंग्वेज, मीन्स इन डॉक्टर्स कोड ही इज टेलिंग दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ. I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy. It turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I am fine now. तो उनको किससे डायग्नोस किया गया? पैनक्रियाटिक कैंसर. पैनक्रिया एक अपना ऑर्गन है अपने बॉडी में, तो उनको उसका कैंसर हुआ था एंड इट वाज अ क्यूरेबल कैंसर. सो इट वाज ऑपरेटेड एंड ही इज वेल नाउ. This was the closest I have been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you: your time is limited, so don't waste it living someone's life. तो क्या इसको क्या बोल रहे हैं? तो मैंने इस बात को महसूस किया कि वक्त बहुत कम है, इसलिए अपनी ज़िंदगी don't waste your time in living someone's life. Someone's life means
दूसरों की तरह जिंदगी मत गुजारिए, आपको जो करना है आपके मुताबिक जिंदगी गुजारिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आप अगर आपको कोई एक्टर पसंद है, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान आपको पसंद है, तो आप उसको मिमिक्री मत कीजिए, उसके जैसा दिखने की कोशिश मत कीजिए। आप आपकी लाइफ में खुश रहिए बोल रहे हो। लिव योर लाइफ, डोंट लिव समवन्स लाइफ, लिव योर लाइफ। Don't be trapped by dogma which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of other people's opinions drown out your own inner voice. तो क्या बोल रहे हैं? Dogma means belief or a set of beliefs held by a group of organization which others are expected to accept without argument. तो क्या बोल रहे हैं? आप दूसरों की लाइफ, दूसरे जो ऐसे बोल रहे हैं दूसरों को लगता है वैसे आप लाइफ मत गुजारिए। हाउ यू वांट टू लिव, और आपके क्या है, आपकी लाइफ में मोटिव्स क्या है, डेस्टिनी क्या है, ये आप डिसाइड करिए और आपकी लाइफ आपके मुताबिक गुजारिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। आपके दिल की आवाज़ सुनिए, आपको क्या बनना है वो बनिए। दूसरा बोल रहा है इसलिए मत बनिए। दूसरा बोल रहा है कि बाबा हाँ मेडिकल फील्ड में बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत स्कोप है, तू ये कर। नो, व्हाट यू वांट टू डू योरसेल्फ। डोंट टेक एनीवन्स, हाँ ओपिनियन लेना, राय मशवरा करना ठीक है, लेकिन अगर आपको वो काम ही पसंद नहीं होगा तो सीख के कुछ फ़ायदा नहीं। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. In the final issue, on the back cover, they put a photograph of an early morning country road. Beneath it were the words "Stay hungry, stay foolish." तो क्या बोल रहे हैं कि एक अमेजिंग पब्लिकेशन का नाम दिया है, बहुत बेहतरीन पब्लिकेशन था, द होल अर्थ कैटलॉग करके। और उनके बैक कवर पे फोटो था अर्ली मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड का, सुबह सुबह जो कंट्री का रास्ता था उनका, उसका फोटो था। और उसके नीचे क्या लिखा था? स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ। तो उनका ये फेयरवेल मैसेज था सबके लिए। फेयरवेल मीन्स सब लोगों के लिए, अच्छे के लिए। आई हैव ऑलवेज विश्ड दैट फॉर माई सेल्फ एंड हाउ एज यू ग्रेजुएट बीइंग अ I wish that for you, stay hungry, stay foolish. So he is giving the message to be stay hungry and stay foolish. Means what? कि हमेशा hungry रहो, किस बात के लिए? इल्म हासिल करने के लिए। और foolish रहो, सीखने के लिए hungry रहो, मुझे आता है करके मत बैठो। और foolish मतलब पागल बनो। मीन्स ऐसे यहाँ पे foolish पागल बनना नहीं है कि ज़्यादा होशियार मत बनो, मुझे सब आता है, ऐसे बोलोगे ना आपको कोई कुछ नहीं सिखाएगा। सो आप ऐसे बन के रहो कि मुझे सीखना है एंड आई डोंट नो एनीथिंग, आई हैव टू लर्न एंड आई हैव टू लर्न। दिस वॉज द मैसेज गिवन बाय द स्टीव जॉब्स. इट वॉज एन वेरी अमेजिंग मैसेज फॉर अस, फॉर आवर जनरेशन एंड फॉर एवरीवन. So guys, if you have understood the lesson, so please like my channel, and if you are having any queries, feel free to ask me. Thank you.